Hello students. In the previous session we had seen that how Hari Singh entered in Anil's room. Now firstly I will read the page number 9 remaining portion. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month and, apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. But it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself, I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Let us see. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना हरी सिंह को काफ़ी अच्छा लगता था. सवेरे उठकर चाय बनाना, उसके बाद में जो है कि दिन भर के लिए सब्जी लाना है, कुछ लाना है, तो सारे काम भी वो बहुत खुशी खुशी से करता था. खुशी के पीछे एक रीज़न ये था कि ही मेड अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट सप्लाईज. और जब वो शॉपिंग को जाता था, कुछ खरीदने के लिए जाता था, तो वहाँ से वो जैसे तैसे करके जो है कि उसमें से ₹1 एक दिन में तो भी वो कमा ही लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. हरी सिंह को पक्का पता था कि ये अनिल को भी पता है कि वो दिन भर में जो भी कुछ लाता है उसमें से ₹1 वो कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो कभी दिखाता नहीं है. अनिल कभी दिखाता नहीं है कि हरी सिंह ऐसे कुछ तो भी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट या फिर मार्जिन कमा रहा है. कभी वो ऐसे दिखाता नहीं है. ये बात हरी सिंह भी रियलाइज़ कर लेता है. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल जो है, जो उसका जो प्रोफेशन जो है वो कुछ क्या है अभी तक उसको पता नहीं. वो अंदाज़ा लगाता है, लेकिन उसको इतना पता है कि अनिल जो है ही हैडंट रेगुलर इनकम. जो है कि जो कुछ भी काम करता है तो उससे उसको रेगुलर इनकम नहीं मिलता है. कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीनिंग इज गिवन हियर इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, कि कभी उसके पास में पैसे रहते, कभी नहीं रहते. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट, कि कभी वो किसी से उधार लेता है तो कभी किसी को उधार देता है पैसे आने के बाद में. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. हमेशा वो इसी टेंशन में रहता है कि उसका चेक उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जैसे ही उसको चेक या फिर पैसे मिल जाते हैं तो वो बाहर जाके अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसे हरी सिंह को लगता है कि अनिल कुछ तो भी लिखते रहता है, तो उसको ऐसे लगता है कि कुछ तो भी लिख कर जो है कि वो अपने जो है लिविंग चला रहा है. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को अनिल जब घर आता है, उनके रूम में आता है, तो उसके हाथ में नोटों का बंडल है. ऐसे लगता है कि शायद उसने जो है कि वो बोलता है कि उसने एक बुक जो है पब्लिशर को बेच दिया है और उसी के वो पैसे हैं. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. रात हो जाती है और अनिल जो है वो पैसे मैट्रेस के नीचे रख देता है.
I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अनिल के घर में आए हुए, अनिल के रूम में आए हुए हरी सिंह को 1 महीना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीने के करीब हो चुका है। शॉपिंग करके जो भी कुछ चीटिंग करता है, दिन का 1 रुपया जो कमा लेता है, उसके अलावा हरी सिंह ने इस 1 महीने में उसका लाइन ऑफ वर्क, उसका जो जॉब जो था, जो थेफ्ट काम करता था, चोरी का काम करता था, उसमें से उसने कुछ भी नहीं किया था महीने भर में। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। उसके पास में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, काफ़ी बार उसको चांस मिलता है कि वो ऐसे कुछ अनिल के घर से कुछ भी चुरा कर ले जा सकता है, क्योंकि अनिल ने अपने रूम की एक की उसको भी देकर रखी हुई है, ताकि वो कभी भी घर के अंदर, उसको मार्केट में जाना है या फिर कुछ काम है तो कभी भी अंदर बाहर वो कर सकता है अपनी खुशी से, और इसलिए उसको एक की भी देकर रखी हुई है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। जब से हरी सिंह को समझ में आया है, उसके लाइफ में उसने अनिल के जैसे इतना ट्रस्टिंग पर्सन जो है आज तक देखा ही नहीं था, कि उसने उसको कुछ जान नहीं पहचाने, लेकिन फिर भी उसको घर में लेकर जाता है, उसको खाना बनाना सिखाता है, उसको लिखना पढ़ना सब पढ़ाना सिखा रहा है वो। तो इतना ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह ने आज तक कभी देखा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और उसमें इतनी अच्छाइयाँ है, उसमें इतने सारी गुड क्वालिटीज़ है अनिल में, और उसके लिए इतना कुछ कर रहा है हरी सिंह के लिए, और इसीलिए उसको लूटना या फिर उसके साथ में चीटिंग करना हरी सिंह को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. हरी सिंह ऐसे सोचता है कि ग्रीडी मैन को, ग्रीडी लालची जो रहते हैं, उनको लूटना काफ़ी इजी है, क्योंकि वो जो है कि उन्होंने भी जो कुछ कमाया है वो किसी ना किसी का दिल दुखाकर ही कमाया हुआ है, तो इसलिए ये पूरा हक है कि हम ग्रीडी मैन को लूट सकते हैं, ऐसे हरी सिंह का मानना है। लेकिन केयरलेस मैन को लूटना बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि वो लूटने के बाद में भी शायद वो इतना केयरलेस रहता है कि उसको पता नहीं कि वो लूट भी चुका है। और इसीलिए शायद सेकंड रीज़न उसके पीछे ये भी है कि अगर लूटने वाले को पता ही नहीं कि वो लूट गया है तो फिर वो प्लेजर जो है वो उनको मिलता नहीं है। हरी सिंह जो है कि कभी कभी उन लोगों को लगता है कि चोरी करने के बाद में वो ऑब्जर्व करते रहता होगा कि अभी ये आदमी का क्या रिएक्शन है, तो कभी देखता होगा तो जो रिएक्शन जो है केयरलेस मैन का रिएक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको लूट लिया गया या फिर उसके यहाँ चोरी हुई है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अभी वो पैसों का बंडल देखने के बाद में हरी सिंह का दिमाग बहुत ज़ोर से काम कर रहा है। वो सोच रहा है कि इट्स टाइम टू डू रियल वर्क, कि यही सही टाइम है कि कुछ तो भी करना है। वो खुद को ही बोल रहा है कि अब प्रैक्टिस के बाहर हो गए, काफ़ी दिन हो गए, पूरा महीना होने को आया कि उसने कुछ तो भी ऐसे नहीं किया है। अगर ऐसे ही रहा तो उसकी ये प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसीलिए वो सोच रहा है कि आज कुछ तो भी करना ही है। और अगर वो उसके बाद में ये भी सोचता है कि अगर वो आज वो पैसे नहीं लेगा, अगर वो नहीं चुराएगा, तो ऑब्वियसली अनिल जो है वो अपने फ्रेंड्स पे उन पैसों को वेस्ट कर देगा, वो तो उसको पे भी नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको ऐसे लगता है कि ही हैज़ द राइट टू स्टील दैट मनी। उसको लगता है कि उसका पूरा हक है कि वो पैसे जो है लेकर वो भाग सकता है। रात हो जाती है, अनिल सो गया है। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. अनिल सो गया, लेकिन हरी सिंह अभी भी जाग रहा है, क्योंकि उसको वो पैसे लेकर घर के बाहर जाना है। तो उठ जाता है। बीम ऑफ मूनलाइट जो है, मूनलाइट उनके बालकनी में आ रहा है, और हरी सिंह बैठ गया और वो देख रहा है कि सिचुएशन देख रहा है कि क्या करना चाहिए। उसने साइड में जो है, बालकनी नेचुरली बाहर साइड में होती है, तो देख रहा है कि मोहल्ले में कोई है नहीं है। और बाद में वो सोचता है कि इफ़ आई टूक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर वो अभी पैसे लेकर घर के बाहर निकल जाता है, रूम के बाहर निकल जाता है, तो उसको नेचुरली 10:30 की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस मिली जाएगी। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। उसके बाद में वो अपने बेड से उठता है और अनिल के बेड की तरफ जाता है। अनिल काफ़ी अच्छी तरीके से शांति से सोया हुआ है। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल जो है इतना पीसफुली सोया हुआ है, जो
हरी सिंह उसको देख रहा है तो अनिल का फेस बिल्कुल क्लियर अनलाइंड है। अनलाइंड मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी, कि उसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं है। वो ये भी नहीं सोच रहा कि घर में इतने सारे पैसे और वो आराम से सोया हुआ है, कोई चुरा लेगा या फिर कोई कुछ करेगा या फिर कल की टेंशन, ऐसे कुछ भी उसके चेहरे पर नहीं है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट, काफ़ी क्लियर ऐसे उसका फेस दिखाई दे रहा है। उल्टा हरी सिंह के चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स है। वो उसको टेंशन आ गया कि अभी ये वो पैसे लेकर क्या करेगा, कैसे यहाँ से निकलेगा, उसके बाद में अनिल का क्या रिएक्शन होगा, ये सोच के हरी सिंह के चेहरे पे स्कार्स जो है, बहुत सारे धब्बे या फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं। My hands slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. हरी सिंह जो है मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है और उसको नोटों का बंडल मिल जाता है। तो नोटों का बंडल बिना आवाज़ किए वहाँ से निकालता है। अनिल सोया ही हुआ है और वो चेंज होता है, करवट बदल लेता है, तो उसका जो चेहरा जो है हरी सिंह की तरफ आ जाता है। हरी सिंह एकदम से स्टार्टल्ड, एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है कि बाप रे, अगर इसने ये उठ गया और इसने देख लिया तो। लेकिन वो सब होने से पहले वहाँ से वो रूम के बाहर डायरेक्टली निकल जाता है। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas. अभी वो रोड पे आ गया है और वो भाग रहा है कि उसके वेस्ट में जो है उसने अपने पैजामा की स्ट्रिंग से, पैजामा जो ओल्ड पीपल पहनते हैं या फिर हम जैसे आप लोग जैसे बर्मुडास जो यूज़ करते हैं उसमें भी वो पैजामा स्ट्रिंग जो रहता है, धागा रहता है, तो वैसे वो ओल्डन टाइम में जो पैजामा पहना जाता था तो उसके धागे से, उसके नाड़ी से जो है वो पैसों का बंडल बांध लेता है। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। बाद में वो उसका भागना कम कर देता है, रुक जाता है एक जगह पे और वो पैसे जो है, बंडल जो है काउंट करता है। तो पूरे वो 600 रुपीज़ है इन 50s, 50 के नोट है, पूरे 600 रुपये है। 600 रुपये इन दैट पीरियड बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जो सोचता है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, वो सोचता है कि बाप रे 600 रुपीज़ मिल गए। वो सोच रहा है कि वो ऑयल रिच अरब की तरह 1-2 हफ्ते आराम से ज़िंदगी जी सकता है। ऑयल रिच अरब मीन्स द पीपल हु लिव्स इन अरेबियन नेशंस। अरेबियन नेशन में रहने वाले, जस्ट लाइक वी आर इंडियंस, वी लिव इन इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड एज इंडियंस। तो अरेबियन नेशन में जो लोग रहते हैं उनको अरब कहते हैं। ऑयल रिच अरब, ऑयल वेल्स वहाँ पे रहती है, उनका मेनली प्रोफेशन वही रहता है, तो लोग काफ़ी रिच रहते हैं। तो उसको ऐसे हरी सिंह को लग रहा है कि जैसे कि ऑयल रिच अरब की तरह वो आराम से 1 या 2 हफ्ते अपनी लाइफ जो है लगा सकता है, बिता सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. स्टेशन पे पहुंचने के बाद में, रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद में वो टिकट ऑफिस की तरफ रुकता नहीं है, क्योंकि आज तक उसने जो है टिकट खरीद के कभी भी ट्रैवलिंग नहीं किया है, विदाउट टिकट ही वो जर्नी करते रहा है। तो सीधा वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद में उसको दिक्कत है, लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है कि वो निकल रही है, तो और उसने जो है कि स्पीड पिकअप कर रही है, तो वो सोचता है कि जंप करके वो एक कैरियज में, एक बोगी में जो है वो जा सकता है, बट ही हेजिटेटेड, लेकिन वो रुक जाता है। पता नहीं क्यों उसके पैर जो है ट्रेन के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है, फॉर सम रीज़न। क्या रीज़न हो सकता है वो खुद भी समझ में नहीं पाता है, और ऐसे करके वो जो है कि ट्रेन में जाने का चांस या फिर लखनऊ जाने का चांस, वहाँ से भाग जाने का चांस वो गवा देता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चली जाती है, भीड़ भी जो है ऑटोमेटिकली ट्रेन के साथ में, या फिर जो कुछ आते लोग जो वहाँ जाते हैं किसी को रिसीव करने के लिए या फिर किसी को सेंड ऑफ करने के लिए, तो वो भी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हरी सिंह जो है अभी भी वहीं पे है, और अभी वो प्लेटफॉर्म डेजर्टेड, वहाँ कोई नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बिल्कुल डेजर्ट की तरह खाली है, और उस प्लेटफॉर्म पे वो अकेला है। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell.
अभी उसके जो है कि वो सोच रहा है कि अभी ये पूरी रात कहाँ पे बितानी है, ट्रेन तो चली गई है और अभी दूसरी कोई ट्रेन भी नहीं है। तो सोचता है कि फ्रेंड्स के यहाँ जाऊँ, लेकिन उसको पता है कि ही वॉज थीव, और उसके फ्रेंड्स कौन रहेंगे, नेचुरली थीव्स ही रहेंगे। और इसलिए उसको समझ में आता है कि किसी फ्रेंड के यहाँ जाना यानी कि वो उसके लिए वो ट्रबलसम हो सकता है। मे बी द मनी ही हैड, कोई भी वो उसको चुरा सकता है, और इसलिए वो भी आइडिया अपने दिमाग से निकाल देता है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. वो किसी होटल में भी नहीं रुक सकता है, किसी लॉज में भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि फिर इतनी रात को लोग पूछते हैं क्या है कैसे है, और उसका जो भी कुछ अपीयरेंस है कि उसको देख के कोई किसी को भी शक आ जाएगा, और इसीलिए वो किसी लॉज में या फिर होटल में रुकने का भी वो जो है अपने दिमाग से निकाल देता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। वो जो पर्सन उसके लिए भी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जहाँ पे वो जा सकता है, और वो पर्सन है जिसको उसने लूटा है, यानी कि अनिल। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ देता है बाद में, और धीरे धीरे वो जो है चलते चलते बाजार में आ जाता है। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ I had made a study of men's faces when they had lost their goods. उसका जो शॉर्ट करियर है, नेचुरल शॉर्ट करियर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उसकी उम्र काफ़ी कम है। तो चोरी करते करते उसने काफ़ी सारे लोगों के फेसेस की स्टडी की हुई है। ही नो द फेस रीडिंग, जो बहुत सारे लोगों में वो जो है कि कैपेसिटी रहती है कि वो फर्स्ट या फिर सेकंड मीटिंग में वो लोगों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। तो उसकी भी काफ़ी अच्छी स्टडी हुई है, क्योंकि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस जो है लोगों ने दिया हुआ है। तो कोई चीज़ गुम होने के बाद में, चोरी होने के बाद में लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। ग्रीडी मैन, लालची जो लोग जो रहते हैं उनको डर लगा हुआ रहता है कि बाप रे अभी चोरी हो गई है, अभी फिर से शायद ऐसे भी हो सकता है, तो डरे हुए रहते हैं और अपना जो वैल्यूएबल्स जो है उसको और भी अच्छी तरीके से संभाल कर रखते हैं। रिच मैन शोड एंगर, रिच मैन जो रहते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके कमाया हुआ, उनको काफ़ी गुस्सा आता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेहनत करके कमाए हुए जो पैसे जो है या फिर जो प्रॉपर्टी जो है या फिर जो कुछ भी वैल्यूएबल्स जो है, इस पर सिर्फ उनका ही हक है और किसी को हक नहीं है, और इसलिए वो हमेशा गुस्सा करते रहते। पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, वो हमेशा पुअर मैन जो है वो शायद भगवान के भरोसे रहते हैं। दे बिलीव ऑन गॉड, वो हमेशा दे ऑलवेज ब्लेम टू देयर फेट, देयर लक, वो हमेशा वो उनका लक है करके या फिर इनके नसीब में ऐसे ही था, इस तरीके से जो कुछ भी जो नहीं था वो भी चला गया या फिर जो कुछ थोड़ा सा था वो भी चला गया, इस बात को लेकर वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. लेकिन जब उसके आंखों के आगे अनिल का चेहरा आता है, अनिल को जब पता चलेगा कि उसकी यहाँ पे चोरी हुई है, कि उसने जो कल कमा के लाए थे वो पैसे नहीं है, तो वो जो है कि वो ना तो उसके चेहरे पे कोई फियर होगा, ना वो एंग्री होगा और ना ही वो पुअर मैन की तरह एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ दुख होगा। टच ऑफ सैडनेस वुड बी देयर, कि वहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख होगा। अनिल को इस बात का दुख नहीं रहेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, अनिल को इस बात का दुख रहेगा कि उसने जिस लड़के को उसके यहाँ पे शेल्टर दिया था, उसको रखा हुआ था, उसको लिखाया पढ़ाया, वो जो कुछ भी कर रहा था लेकिन उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया, जब गलत काम कर रहा था उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जिस लड़के पे इतना भरोसा किया उस लड़के ने भरोसा तोड़ दिया, ये सोच के जो है अनिल को बहुत ज़्यादा दुख होगा। और ये जो है कि वो अनिल की जो रियलिटी जो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से, या फिर अनिल कैसा है ये सही तरीके से हरी सिंह ने पहचान लिया है।